Good morning, students. This is your last video. That's number 4th. Today I talk about Ganga Basin, Brahmaputra Basin, Great Indian Desert. Let's start here. Last video. See, Ganga Basin. Already I told that there are 3 types of basins: Satluj Basin, Ganga Basin, and Brahmaputra Basin. Today we are going to the next paragraph, basin of Ganga. Ganga is a major and the most sacred river of the Indian subcontinent. The Ganga originates from the glacier Gangotri. गंगा भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्रमुख पवित्र नदी है गंगा. It's originated from the glacier Gangotri. Its main tributaries in the mountains are the Alagadanda, Mandagini, and Bhagirathi, which merge before it entered the northern plains at Haridwar. ये पहाड़ों में इसकी मुख्य सहाय नदी होती है. ये सहाय नदी अलकनंदा है, मंदाकिनी है, भगीरथी है. बट ये हरिद्वार में उत्तरी मैदान में प्रवेश करने से पहले मर्ज हो जाती है. गंगा इज द मेजर एंड द मोस्ट सैक्रेड रिवर ऑफ द इंडियन महा उपद्वीप का एक प्रमुख पवित्र नदी है गंगा. ये द गंगा इज ओरिजिन फ्रॉम ग्लासियर्स गंगोत्री से होती है. द मेन पहाड़ों में से इसका मुख्य सहाय नदी चलती है. The Ganga and Yamuna are two main rivers in the basin. In this basin, already 2 rivers, Ganga and Yamuna. As the Ganga flow into the plains, its tributaries, Gandak, Gagra, Kosi, Gomadi and San. इसका सहाय का मतलब एक सहाय नदी है. गंगा और यमुना का एक सहायक नदी है. कोसी है, गोमती आदि सन join it in this plains. The Ganga is joined by the river Yamuna and Saraswati at Prayagraj, and the place of their meeting is called Sangam. जब गंगा और यमुना और सरस्वती दोनों जुड़ते हुआ जगह को अपन संगम कहलाती है. गंगा अलाहाबाद का प्रयागराज में यमुना और सरस्वती नदियों से मिलता है और मिलने को स्थान को अपन संगम कहलाता है. घाघरा इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा. द गंगा basin lies between the Satluj in the west and Brahmaputra in the east. The Ganga joined the Brahmaputra before flowing into Bay of Bengal. बंगाल की खाड़ी में गिरते पहले गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलते हैं. यह मिलते हुआ प्लेस को कहलाता है गंगा सागर. The point where the Ganga meets the sea or the Bay of Bengal is called Ganga Sagar. At this point, the rivers became wider and slower. Since it carries a lot of sediments along with which get deposited on the way, this results in the breaking of the river into channels. These form a triangle and finally fall into the sea. Such a triangle region where the river splits into the channels just before joining the sea called delta. The delta formed by the Ganga and Brahmaputra is the largest in the world and is known as Sundarbans. It is a home to the Royal Bengal tiger. इस बिंदु पर नदी छोटी और धीमी होती है. मतलब it is a wider and the slower than the rivers of Ganga Sagar. ये बिंदु पर नदी चौड़ी और धीमी होती है. ये अपने साथ बहुत सारे तलछट ले जाता है जो रास्ते में जमा हो जाता है. इसका परिणाम स्वरूप नदी चैनल में टूट जाती है.
ये एक ट्रायंगल बनाता है और अंत में समुद्र में गिर जाता है। ऐसा क्षेत्र को अपन डेल्टा कहलाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा है। इसको अपन सुंदरबान रूप से माना जाता है। ये रॉयल बंगाल टाइगर का घर है इन दिस रीजन ऑफ गंगा basin. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र basin. The river Brahmaputra start in Tibetan where it is called Tangspo. The river start from Tibet, then it is called Tangspo. ये ब्रह्मपुत्र टिबेटन साइड में से निकलता है, इसलिए इस जगह में हम कहते हैं सांग्सपो. इट इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ एशिया. इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द 3 great rivers in the northern India. It is the major river and is the longest river in the north of India. The Brahmaputra basin is the narrow strip in the south state of Assam. This basin आसाम से लेकर अरुणाचल प्रदेश के रास्तों में भारत में प्रवेश करती है. द ब्रह्मपुत्र एंटर द इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश वेयर इट इज़ कॉल्ड सियाम. ऐसा जुड़ा हुआ है, मतलब प्रवेश करने का जगह को अपन कहते हैं सियाम. ये आसाम और बंगाल से ये ब्रह्मपुत्र एंटर द इंडिया थ्रू द अरुणाचल प्रदेश वेयर इट इज़ कॉल्ड सियाम. फ्रॉम हियर it flow through the Assam and then the Bangladesh. Here it is joined by the Patma that flow through Bangladesh. Together they form delta form flowing into the Bay of Bengal. This basin Assam से लेकर अरुणाचल प्रदेश के रास्ता में भारत में प्रवेश करती है. इसका सियाम कहलाती है. ये आसाम और बांग्लादेश में बहती है. इसमें एक नदी भी जुड़ जाता है, उसका नाम क्या है? पद्मा. एंड दे आर टुगेदर फॉर्म डेल्टा बिफोर द गोइंग टू द बे ऑफ बंगाल. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट द अदर नेम ऑफ थार डेजर्ट. ग्रेट इंडियन डेजर्ट को अपन दूसरा नाम कहलाता है थार डेजर्ट. A desert is defined as an arid or dry stretch of land characterized by the very scant rainfall and vegetation and extreme temperature. मरुस्थान को शुष्क या डिसर्ट का भूमि कहलाता है. मरुस्थान को शुष्क या डिसर्ट का भूमि कहलाता है. इसमें पानी का कम वर्षा और वनस्पति अत्यधिक तापमान विशेषता होती है. ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत का पश्चिम भाग से स्थित है. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. इट इज ए लैंड ऑफ सैंड डन्स एंड कैमल विद ए वेरी लिटिल रेन एंड वेजिटेशन. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज आल्सो नोन एज थार डेजर्ट. द ऑक्युपाइज द मेजर पार्ट ऑफ द राजस्थान. ये डेजर्ट भारत का पश्चिम भाग में स्थित है. ये रेत के टीलों और ऊँटों की भूमि कहलाती है. मोस्टली द डिजर्ट्स आर ऑक्युपाई द मेजर पार्ट ऑफ राजस्थान. ये राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा है. The Thar Desert extend up to the border of Pakistan in the west. थार मरुस्थान पाकिस्तान की सीमा तक फैला है. It stretches from the run of Kutch in Gujarat to the border of हरियाणा. यह गुजरात के कच्छ के रन से लेकर हरियाणा की सीमाओं तक फैला है. एंड इसमें साइड में एक पहाड़ रहता है. उस पहाड़ का नाम अरावली हिल्स. द अरावली हिल्स लाई टू द ईस्ट ऑफ द थार डेजर्ट. द थार डेजर्ट the length of 500 km extending from the north to south while 100 to 3 km wide. ये डेजर्ट का लेंथ है 500 किलोमीटर एंड नॉर्थ टू साउथ टू वाइड 100 किलोमीटर 300 किलोमीटर वाइड में
ऐसा विकसित हुआ ये डेजर्ट. The soil in the Dar Desert is sandy and rainfall is very very low. This area, soil sandy and rainfall is very low. इसमें चारों तरफ रेत से भरा हुआ है, पानी से very shortage here. Anywhere between 100 and 500 millimeter per year. हर साल में इधर 100 और 500 मिलीमीटर हर साल में पानी मिलता है. There is a rainfall is very low, anywhere between 100 and 500 millimeter per year. One of the river is flow in this region. That name is Loni. Small hills of sand called sand dunes are found here. Due to scarcity of water, shrub or thorny bushes are the only types of vegetation found here. पानी का कमी के कारण इसमें छोटा छोटा पौधा उगता है, like thorny bushes and shrubs. Cactus is the main plant found here. दूसरा पौधा है cactus. Small area of greenery with a water body is called oasis. Singular means oasis. इस क्षेत्र में हरियाली के छोटे छोटे क्षेत्र पाया जाता है. इसको अपन कहता है ओयासिस. हरा हुआ जगह को हम कहलाता है ओयासिस एंड ओयासिस आर फाउंड इन दिस डेजर्ट. मोस्टली पीपल लिव अराउंड ओयासिस. इस हरा हुआ एरिया में कुछ लोग नोमाड्स लोग रहता है. सम plants are found here. Dates, kicker and bubbles are near an oasis. इस oasis एरिया में कुछ पौधा उगता है, dates, kicker and bubble. Desert life is hard because of harsh climate and scarce water. The camel is the most important animal in the desert. It is the most widely used animal because it can walk on the hot sand and adapt itself to the harsh climate. इसमें रहना आसान नहीं है, बहुत कठिन है. because of they are very harsh climate and scarce water. पानी का कमी का वजह से मतलब क्लाइमेट भी चेंज है, इस वजह से इधर रहना मुश्किल है. द कैमल मतलब शिप रेगिस्तान का महत्वपूर्ण जानवर है कैमल. कैमल को अपन शिप ऑफ द डेजर्ट कहलाता है because it can walk on the hot sand and adapt itself harsh climate. इसको कई तरीक़ों में इस्तेमाल किया गया है. बिकॉज ये गर्मी में रेत पर चल सकता है और कठोर जलवायु के लिए खुद को चलाने के लिए दिक्कत इस जानवर को नहीं है. इसलिए ये जानवर रेगिस्तान में अधिकतर लोग इस्तेमाल किया गया है. इसलिए द कैमल इज़ नॉन एज शिप ऑफ द डेजर्ट. रेगिस्तान का जहाज़ शिप को कहलाती है. मतलब कठोर जलवायु के लिए खुद को अनुकूलित कर सकता है. इसलिए कैमल को कई तरीके से इस रेगिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है. Dear students, your last video has completed. Thank you.